ویلکم بیک ٹو سکھ کی سوچ. اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمرا انجرڈ ہیں, اور نمرا آپ انجرڈ کیوں ہیں, اس وجہ سے سب کو ایک تو وجہ بتائیں اور پھر آگے پھر اسی کے حوالے سے بات کریں گے ہم. مجھے ابھی خود بھی ہنسی آ رہی ہے کہ اتنے مزے کا کوئنسیڈنس ہو گیا. ہم ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں ہارس رائڈنگ پہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میری انجری کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہارس رائڈنگ کرنے کے بعد میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا اور اس کی وجہ سے میرا فٹ شدید قسم کا انجرڈ ہے. اور ابھی ہم لوگ جب بات کرنے لگے بریک میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہارس رائڈنگ پہ ہی بات چیت کرنی ہے. تو دیٹس لائک ا کوئنسیڈنس. خیر چلیں آپ سٹارٹ کریں پلیز. گھڑ سواری سے. آپ اچھا ڈو یو رائڈ دی ہارس؟ ہاں میں کبھی کبھار کرتا ہوں, لیکن آپ تھوڑا سا ایکسپرٹ ہو تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اسٹارٹ کیجیے. گھڑ سواری سے ویسے کون ہی واقف نہیں ہوگا. یہ کھیل جو ہے ہم لوگ اکثر, بلکہ آپ نیٹ فلکس کھولے, کوئی سیریز دیکھیں, کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس پہ اگر آپ جانے کی کوشش کریں تو جنگجو کی مہارت والا یہ کھیل سمجھا جاتا ہے. کوئی بھی اگر آپ جنگ دیکھیں تو اس میں پہلے کے زمانے میں تو خاص طور پہ گھوڑوں کا ہی استعمال کیا جاتا تھا. اور لیکن اس میں ہوتا یہ کہ ایک جو سوار ہوتا ہے وہ گھوڑا دوڑاتا ہے, اور پھر اس کے بعد میدان میں نصب جو اچھا ہم لوگ اس کی بات کریں ٹین پیگنگ کی, تو وہاں پہ ایک میخ ہوتی ہے میدان میں, اس کو ایک نیزے یا پھر تلوار سے اٹھاتا ہے اور اکھاڑ دیتا ہے. اور اس کھیل میں گھوڑے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنا توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے, اب ظاہر آپ بیلنسڈ ہوں گے تو ہی آپ یہ کر پائیں گے, ورنہ تو بھائی آپ گئے اور وہ بھی اتنی اسپیڈ سے, تو وہ آپ کو ہیڈ انجری کاز کر سکتا ہے یا مزید آپ کے جسم کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ تو بالکل ایسے ہی. اور آج ہمارے ساتھ ایک, جس طرح نمرا نے تو اپنا پاؤں کو چلوا دیا, لیکن آج ہم نے ایک گھڑ سواری کی ایکسپرٹ کو بلایا ہے جن کا نام ہے عروج کیانی. عروج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ گھڑ سوار تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے تگڑے اور اس طرح, اور آپ کو دیکھ کے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے, خواتین بھی اس طرف آ رہی ہیں. خواتین جی, اگر ہم انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو 70-80% خواتین ہی ہیں گھڑ سواری میں, ایکویٹیشن میں, کیونکہ 800-900 پاؤنڈ کا ایک جانور سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر مرد سنبھال رہے ہیں, لیکن اس میں ایک اسکل فیکٹر بہت ہے, جس میں گھوڑے کے ساتھ کمیونیکیشن, رائڈنگ سکلز, سیٹ اسپرچل ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو ود یور ہارس. ایگزیکٹلی. تو وہ کیونکہ وہ بڑا ہی انٹیویٹو قسم کا ایک جانور ہے, تو عورتیں بڑی کامیاب ہوتی ہیں گھوڑوں کے ساتھ, تو کنٹری ٹو دا کامن بلیف ادھر. صحیح. اچھا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ پلیز شیئر یور جرنی ود اس ایز ویل ایز آور آڈینس, کہ وہ سیکھ سکیں کہ بھائی جان کیا کرنا ہے. چلے میں اسٹارٹ تو میرا جو گھوڑوں سے ہوا تھا وہ بالکل وہی اسپرچل انٹویشن, ایک جانور, ان کے بس صحبت میں رہنا بہت پسند آنے لگ گیا تھا. اٹ واز لائک ڈیلی تھراپی. لیکن پھر جب رائڈنگ شروع کی تو کسی نے کہا کہ جی آپ کی ایک نیچرل اچھی سیٹ ہے, آپ اس پہ کریں. پھر اچھے استاد ملے, اچھے مواقع ملے. پھر میرے والد نے, میں ہر انٹرویو میں بتا چکی, میرے والد نے مجھے کہا کہ آپ نیزہ بازی میں آئیں, کیونکہ وہ عوامی کھیل ہے, اور لوگوں کو اگر آپ نے لڑکیوں کو انسپائر کرنا ہے تو آپ اس کھیل کو چنیں جو ملک میں سب سے زیادہ مشہور ہے. اس وقت تک لڑکیاں کمپٹیشن نہیں کرتی تھی. تو پھر مجھے ایک ٹرینر ملے, وہ ماشاءاللہ سے 5 نسلیں تھیں ان کی اس چیز میں. وہ پولو پلیئر بھی تھے اور ہائی جمپس اور یہ نیزہ بازی بھی سب کچھ کرواتے تھے. اور ان کا ایک خاصیت یہ تھی کہ ان کی بہنیں انٹرنیشنل ہارس ٹرینرز تھیں اور رائڈرز تھیں, تو ان کو ایک سمجھ تھی کہ عورت کو ٹرین کیسے کرنا. اور تو انہوں نے مجھے اس لیول پہ ٹرین کیا کہ مرد عورت کی بات ہی نہ رہ جائے, سوار ہو جائے. تو وہ جو ٹریننگ تھی, میں کہتی ہوں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کا. کیونکہ اور ابھی میں بس کل ہی نیشنل ٹرائل سے واپس آئی ہوں, تو ایک رن میں میری اسٹرپ نکل گئی تھی, تو میں نے ٹانگوں میں گھوڑا پکڑا اور پیگ اٹھا لیا. تو پھر میں نے ان کا جا کے شکریہ ادا کیا کہ وہ جو ٹریننگ آپ نے کی کہ مجھے بیلنس کے لیے. ہاں, تو میں لڑکیوں کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ آپ پہلے نا اپنی فاؤنڈیشن, جو گھڑ سواری کی فاؤنڈیشن ہے, اس پہ محنت کریں. پھر آپ کوئی کھیل اٹھا لیں گھڑ سواری کا, آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ٹین پیگنگ از اے اسکل آف ٹائمنگ, ایمنگ. اتنا سا پیگ 4 سینٹیمیٹر 6 سینٹیمیٹر, بیلنس, بالکل ویجیلنس, وہ سب چیزیں ملا کے ہی بھائی آپ کر سکتے ہو, ورنہ تو 1 سیکنڈ سے بھی اسکپ ہوا وہ. بالکل. تو میں بہت سی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں جن میں بہت ایمبیشن ہے اس کھیل کو لے کے, لیکن کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن کمزور رہ جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پرفارمنس سسٹین نہیں کرتے. اچھا, فاؤنڈیشن کے علاوہ مواقع بھی نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل. میں ادھر اسی لیے فار ایگزامپل ہم لیٹس سے ابھی ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, بالکل, تو آپ کو کیا کیا مواقع نظر آتے ہیں؟ آپ لڑکیوں کو گائیڈ کریں, بتائیں ان کو. جی, میں نے تو خاص طور پہ سی ڈی ایس سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, اور میری ایک اتھارٹی سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ رائڈنگ اسکول جنرلی ہر شہر میں اویلیبل ہونا چاہیے.
इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट और स्किल, और घोड़ा आपको बड़ा कुछ सिखाता भी है, बड़ी जिम्मेदारी और सिखाता है। तारीखी स्किल भी है ना, तारीखी कितनी पुरानी चली जी, आ रही है। सिर्फ तारीखी नहीं, मजहबी भी है, तारीखी भी है। हमने ये जमीन फतह ही घोड़ों पे की थी। है। पूरी दुनिया में इस्लाम फैला ही घोड़ों के जरिए। बिल्कुल, और हमारी हदीसें हैं ता क़यामत तक इनके ऊपर रहमत है। हमारे हर नबी का शौक रह चुका है। हमारी हज़रत आयशा से लेके हज़रत खदीजा, बल्कि बड़े कम लोगों को पता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी में एक औरत थी जिन्होंने, जो घुड़सवार थी और वो तीर अंदाजी करती थी घुड़सवारी पे, और उन्होंने जाके एक जंग में अपने भाई को रेस्क्यू किया था हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजाज़त से। तो मैं ये कहती हूँ कि ये तो बच्चियों के लिए एक बड़ा ग्रेसफुल रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट है, और हम लोग ये देख चुके। मेरी अपील है थोड़ी सी, मैं काफ़ी लोगों को इनकरेज कर रही हूँ इस सिलसिले में। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल पहले हम लोगों ने वुमेन चैप्टर खोला पाकिस्तान में, पहली दफ़ा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान के अंडर। मैं अभी उसकी पहली फीमेल बोर्ड मेंबर हूँ। अच्छा। तो हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है उसमें हम बहुत सॉलिड तरीके से बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए इस खेल में उनको मौके देने के लिए एक फेयर एनवायरनमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए काफ़ी काम हुआ है। और मेरा यही था, और हम सारे जो ईसी मेंबर्स जिन्हें कहते हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बोर्ड के बैठे हुए थे, हम लोगों ने एक चीज़ जहन में यही रखी थी कि जी ये हमारे लिए नहीं, जो हमारे बच्चे हैं और जो आगे औलादें हैं उनके लिए एक ऐसी जगह बन जाए कि बच्चियों को ये सोचना ना पड़े। आप इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, फिर उसके बाद आप सिर्फ एक काम नहीं करती, पोलो भी साथ खेलती हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि हम किसी भी गेम को देख लेना, साथ साथ खवातीन पैरेलल ग्रो कर रही होती हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह की ग्रोथ है खवातीन की कि अभी बहुत पीछे हम? पोलो तो अभी नहीं, मैं इतना खेलती, बस वो राइडिंग स्कूल तक ही है ट्रेनिंग। वो मैं पोलो के घोड़े फेरती हूँ क्योंकि मेरे जो उस्ताद है वो पोलो प्लेयर है, तो उनके सारे घोड़े, वो बहुत ज़रा एक्स्ट्रा जान वाले घोड़े होते हैं, तगड़े घोड़े होते हैं। उसमें ये है कि पैरेलल इसलिए लेना चाहिए। अब मैं आई डिड द गोल्ड चर्च इंटरनेशनल कोर्स। उसमें यह है कि जब आपने एक फील्ड अपनी चुन ली है तो आपको बिल्कुल 100% फुली अवेयर होना चाहिए उस चीज़। आपको अपने लॉज पता होने चाहिए, अपने रूल्स पता होने चाहिए, आपको इंटरनेशनल लोकल स्टैंडिंग पता होनी चाहिए, आपको लोग फील्ड में सलाम दुआ रखनी चाहिए, क्योंकि ये मर्दों की फील्ड है। तो और मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ कि देखें, आप कोई नया माहौल नहीं बना रही। ये जो नेजाबाजी का माहौल है पाकिस्तान में बड़ा कदीम है, और जो मर्द है वो नस्ल दर नस्ल नेजाबाजी में आ रहे हैं, घोड़े। तो मैं हमेशा बच्चियों को कहती हूँ कि आप उनकी सकाफत का, उनके कल्चर का एहतराम करें। अगर आप मेलों पे जाती हैं तो आप जिस तरह वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ एक डेकोरम, आप उसकी रिस्पेक्ट करें और जाके सीखें इनसे। अभी मुकाबले करने की जरूरत नहीं है, आप सीखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर में है कि मर्द वर्सेस औरत बड़ी जल्दी हो जाता है। मैंने जितने लोगों से डील किया, मुझे बड़ी सपोर्ट मिली है और बड़े अच्छे डिसेंट लोग इस फील्ड में मिले हैं। उनसे आपका सीखना बनता है अभी, क्योंकि हम नए हैं इस फील्ड में। तो वो बड़ा कुछ सिखाते हैं कि वो अंडर प्रेशर कैसे है, उनकी टेक्निक्स कैसी है, वो घोड़े कैसे करते हैं। ख़ास तौर पे जो मुझे पसंद आता है कि मेले के बाद मैं देखती हूँ अक्सर बच्चियाँ घोड़े से उतर के चली जाती हैं। मर्द जो है वो अपने घोड़े को लेके जाता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसके पैर चेक करता है कि पैर तो नहीं सूज गए, कोई इंजरी तो नहीं हो गई। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ इस चीज़ को भी ओन करें, अंडरस्टैंड करें द काइंड ऑफ द बॉन्ड दैट यू हैव टू हैव विद योर। अगर आप ड्राइवर हैं और आपको टायर भी नहीं चेंज करना आता या इंजन का भी नहीं पता, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका। और ये जिस तरह निम्रा की इंजरी हुई, कभी आपको भी इंजरी हुई? तो वाकया ऐसा है? इंजरियां देखिए होती रहती हैं, क्योंकि अनलाइक एनी मोटर व्हीकल घोड़े का अपना दिमाग है। यस और अपनी पर्सनालिटी है। अच्छा, सीधे लेके जाना है तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, पहले लेफ्ट होता है। देखिए, घोड़े की बड़ी ट्रेनिंग होती है। हम जब मेरे जो उस्ताद हैं वो जब अब तो मैं उस्ताद कम और टीम प्लेयर और दोस्त ज्यादा हैं, उनसे के साथ जब हम कच्चे से घोड़े लाते हैं ना, तो उनकी कम से कम 3 से 6 महीने ट्रेनिंग होती है। अच्छा। उसको कहते हैं मुंह बनाना। घोड़ा आराम से आपकी टांगों में दब के उसे समझ आ रही है कि या रुकना है या चलना है, उसको फॉरवर्ड सिखाते हैं, लेफ्ट राइट सिखाते हैं। तो अगर आपको घोड़ा अच्छा मिला है, जो अच्छा ट्रेंड है, उस पर आपको इंजरी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मुश्किल घोड़ा है जिसकी ट्रेनिंग कंफ्यूजन रही है उसको ट्रेनिंग में, कि कभी कोई कुछ सिखा रहा है, कभी कुछ, लेकिन घोड़ा भी अगर अनट्रेन हो और राइडर भी अनट्रेन हो तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मैं ये कहूंगी, मुझे हमेशा ये रिकमेंडेशन मिली है कि कोई अक्लमंदी नहीं है गंदे घोड़े के ऊपर बैठ के अपने आप को प्रूव करने की। आप जब सीख रहे हैं और आप जब प्रैक्टिस मेंटेन करें, जैसे अगर मैं सुबह जाती हूँ तो वो कोशिश करते हैं कि जी दिन का आगाज अच्छे घोड़ों से हो, तो मेरे लिए अच्छे घोड़े लाइनअप होते हैं कि आप अपना
बॉडी मूवमेंट वापस लाएं, कॉन्फिडेंस वापस लाएं, फिर शाम को मिलते हैं डिफिकल्ट घोड़े कि अब होशियार, बिकॉज वो भी सीखना जरूरी है यस कि अगर घोड़ा अपना दिमाग करता है तो आपने उससे कैसे कम्युनिकेट करना। और बहुत दफा मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो कि मैं रन करने लगी और घोड़े ने अड़ गया और उसने कहा कि मैं तो नहीं जा रहा। तो वो रादर अब आम सिनेरियोज में जो लोग करते हैं वो एम्बैरेसमेंट फील करते हैं और एक ईगो का स्पर जाता है। तो मुझे जो सिखाया गया था वो ये था कि देखो उसने कुछ महसूस किया है, उससे प्यार करो, उससे बात करो, थोड़ा खींचो पर फिर थोड़ा पूछो कि क्या मसला है। मैंने उसको लाड किया, प्यार किया, समझाया कि सब ठीक है, एक और दफा ट्राई करते हैं। और मैंने क्योंकि उसको खींचा हुआ था तो मैंने उसको रिलीज किया। लोग उल्टा करते हैं, जब घोड़ा ज्यादा मस्ती करता है तो ज्यादा खींचते हैं। यस तो वो लेकिन मैं ये नहीं कह रही है हर घोड़े पे काम आता है, लेकिन आपको एक विद प्रैक्टिस आप डिफरेंट घोड़े जब आप ट्राई करते हैं तो आपको पता चल जाता है इससे मैंने ये लाड का है या सख्ती का है या किसका है। ओके ओके तो उस चीज आपका रिश्ता बन जाता है, साइकी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप अपना पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और जब आपके उस्ताद को लगे कि आपकी सीट और आपकी टांगों में, मैंने जितनी डांट खाई है, टांगों में जान डालें, टांगों में जान डालें, क्योंकि घोड़े के ऊपर जो ग्रिप है वो आपकी बड़ी मैटर करती है। तो उसमें जब उस्ताद कॉन्फिडेंट होगा तो आपको खुद ही एक चैलेंजिंग घोड़ा देगा, क्योंकि अगर उसने आपको घुड़सवार बनाना है तो फिर ऑफ कोर्स उसने आपको सारे स्किल्स आहिस्ता दूसरा निम्रा आपके लिए ये है कि आपने घबराना नहीं है, खान साहब ये कहते हैं। और दूसरा ये अल्लाह का शुक्र है मैं कभी भी नहीं घबराती। जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर वो अगर उसके सामने आप एक्सीडेंट कर दें और मेरी इंजरी राइडिंग में नहीं आई, आप पक्के ड्राइवर बन गए। नहीं मेरी घोड़ा भी कहता है कि आप गिरेंगे तो असली घुड़सवार, आप असली ड्राइवर अब बनी है, घुड़सवार अब बनी है। अच्छा मेरे जो मेंटोर है उन्होंने एकदम से यही कहा अब आप राइडर बनेंगे। बिल्कुल। और मेरा तो राइडिंग दौरान हुआ नहीं, आई वाज हगिंग हिम और मेरी अपनी बेवकूफी की वजह से उसका पैर। देखिए मैं कहती हूँ आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा पहचानें। घोड़ा जो है वो एक हर्ड एनिमल है। यस अगर इनको आप वाइल्ड में छोड़ें तो वो 6 फुट दूर अपने दूसरे घोड़े की घबराहट पहचान लेता है, खतरा पहचान लेता है। तो अगर वो खड़ा तो आप तो उससे 1 इंच ऊपर नहीं है, तो अगर आप घबरा रहे हैं वो सब फेस कर रहे हैं। अगर आप डरे में वो महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत से घोड़े ऐसे देखे हैं जो बच्चियां शुरू में डरी होती हैं, उनको वो लेके भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सवार खुद कॉन्फिडेंट नहीं है तो मुझे नहीं हैंडल करना। बड़ा ज़हीन एक जानवर भी है, बहुत ज़हीन। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर घबराहट है तो जस्ट ईज इट आउट। उसके साथ आप देखें फौरन काठी पे ना चढ़े। मेरे अभी तक एक तरीका है कि मैं जाके अपना हाथ देती हूँ कि देखो मैं सेफ हूँ, नहीं कि मैं सेफ हूँ, तो मैं मुझसे कोई खतरा नहीं है। फिर मैं उसको प्यार करूंगी, मैं थोड़ा सा घास खिलाऊंगी, लेके पकड़ के वॉक करूंगी, उसकी आंखें नरमी आएगी, चेहरे पे नरमी आएगी। आप आइए हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, लेकिन आपने जितना खूबसूरती से तमाम चीजों की मंजरकशी की ना, मुझे लगता है कि मुझे भी घुड़सवारी की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी उरूज की, एंड आई विल स्टिल गो फॉर हॉर्स राइडिंग। आई विल स्टिल गो। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।